Nifty has created all-time highs last year, October 2021, and now it is October 2022, which is almost near to end, and still it is not able to surpass that highs of 18,600. And in this particular period, we have seen a very good corrective move and even a sideways move, जहाँ पे अच्छा खासा consolidation we have seen. Now, what can be done with the Nifty? Whether it will surpass that highs and after that a good move can happen, or whether a small corrective move or good correction can happen from here onwards. So in this particular video, we have shared this particular levels that what can be done with the Nifty and Nifty Bank from here onward. So make sure to watch this video till very end, because you will be getting lot of learning things that कि हमें जब भी निफ्टी या निफ्टी बैंक का एनालिसिस करना है तो कौन से की इंपॉर्टेंट लेवल्स के ऊपर ध्यान देना है, जिसके बाद में हमें एक मोमेंटम मिले आने वाले टाइम में. And also we have shared 5 important stocks which can do well in upcoming weeks, even in upcoming 1 to 2 months as well. So make sure to watch till very end, so you will be getting a lot of things out of this. So let's quickly move towards the analysis. Hello guys, so a lot of people are having this doubt in their mind that where will actually Nifty go, whether it will go towards 18,500 and we will able to see all time highs, or whether again more correction can be seen. So in this video we will be talking about key levels for Nifty and Nifty Bank for this week, and these levels will be valid for upcoming month as well. And we will be talking about 5 stocks which is having good setups, and they are valid for this week and even they are valid for whole month as well. So I would be letting you know the levels for that as well. So in front of us, this is the chart of Nifty, and we'll quickly move to the hourly chart. Hourly chart is one of the important chart because from there we can keenly understand that what exactly is happening. You guys can see that this is the hourly chart, and on the hourly chart Nifty is rising like this, and it is forming this rising channel. This is called as the rising channel. So there is a possibility that whenever this particular stock whenever this particular channel breaks, so from there a good move for the upside, or if it breaks on the downside, then downside move can happen. So we'll quickly see the levels, that what exactly the key levels for Nifty. So this is the immediate support. You guys can see that I have marked over here. The Nifty current market price is 17,786, and the immediate support Nifty is having at 17,630 to 17,660 zones. Now we will quickly see on the charts why these levels are important. You guys can see over here that this यहाँ पे निफ्टी ने क्लोज दिया है तो 17,660 से 17,630 ये जो जोन है क्लस्टर पिछले 2 दिन से यहाँ पे सपोर्ट लेके बाउंस हो रहे हैं, तो वो एक इम्पॉर्टेंट लेवल है. अगर वो ब्रीच करता है देन वी विल मूव टुवर्ड्स 17,530 और 17,430 वाले जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट्स हो गए, तो हम लोग उस तरफ जाएंगे. बिकॉज जब भी ये ब्रेक होगा, सो दैट टाइम यू गाइस कैन सी दैट ये राइजिंग चैनल का भी ब्रेकडाउन होगा और वहाँ से हमें क्विक मतलब फास्ट वाला फॉल दिखेगा. सो इन दैट केस यू कैन लुक फॉर द शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी. सो आई विल जस्ट मेंशन दिस लेवल दैट अगर 17,630 17,660 ये इमीडिएट सपोर्ट ब्रेक होता है, तो ब्रेक बिलो दिस इमीडिएट सपोर्ट्स हम लोग जाएंगे 17,530 17,430 की जोन्स की तरफ. ओके, नाउ व्हाट इज द इमीडिएट रेजिस्टेंस फॉर निफ्टी? सो दैट आई हैव मार्क्ड एट 17,890 से लेके 17,920. सो आई जस्ट क्विकली शो यू ऑन द चार्ट सो यू गाइज वुड अंडरस्टैंड. तो ये है 17,890 फ्रॉम दिस पर्टिकुलर जोन. ये जो यहाँ पे जहाँ से निफ्टी ने डाउन साइड आया था, तो ये जो जोन से वो इमीडिएट रेजिस्टेंस है. क्योंकि आप देखोगे तो ये राइजिंग चैनल के रेजिस्टेंस की मतलब यहाँ पे जाके रेजिस्टेंस आने वाला है. सो वेन एवर इट विल ब्रीच दिस जोन्स, सो वहाँ से एक अपमूव आएगा. एंड उसके बाद में आपको एक इमीडिएट इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है भी, उसके बारे में बात करूँगा. अगर वो ब्रेक होता है तो हम लोग ऊपर की तरफ जाएंगे. सो आई जस्ट शेयर यू दैट कि वो लेवल अगर ब्रेक होते हैं तो क्या होगा. तो 17,890 17,920 ये इमीडिएट रेजिस्टेंस है. इफ दैट ब्रेक्स देन निफ्टी विल मूव टुवर्ड्स 18,100 zones. Okay, so this where you can go for the long side and important resistance. Now I will talk about important resistance, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मार्केट सिर्फ ऊपर चलता जाएगा. तो 18,100 लेवल से ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस फॉर निफ्टी. सो विल सी दैट व्हाई दिस पर्टिकुलर जोन्स आर इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस. सो आई विल क्विकली मूव टुवर्ड्स द डेली चार्ट एंड यू गाइस कैन सी दैट these आर द 18,100 जोन्स की. यहाँ से एक बार पहले नीचे आया था, फिर इसी जोन्स में 18,100 इसी जोन्स में रिसेंटली इसने रेजिस्टेंस लेके नीचे आया था. यही जोन में पहले भी रेजिस्टेंस लग चुका था. तो
आई एम नॉट थिंकिंग कि मार्केट डायरेक्टली ये 18,100 के जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है वो ब्रेक करके जाएगा. यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है गाइज, प्लीज नोट इट डाउन, दैट इट माइट कंसोलिडेट इन दिस पर्टिकुलर जोन, कि जब भी ये 18,100 के आसपास आए यहाँ पे कंसोलिडेट हो फिर ये ब्रेक हो, या फिर वहां पे 18,100 के आसपास आने के बाद में एक छोटा सा रिट्रेसमेंट टूवर्ड 17,900 17,600 के जोन पे आया और फिर वहां से बाउंस आके ये ब्रेक हो. ये पॉसिबिलिटीज है. बट जब भी 18,100 के ये की इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस ब्रेक हो गए, सो दैट टाइम यू कैन सी अ वेरी गुड अप मूव इन द निफ्टी एंड दैट कैन हेड टूवर्ड्स 19,000. यू गाइस कैन सी दैट एक मतलब सॉर्ट ऑफ कप एंड हैंडल पैटर्न का भी ये ब्रेकआउट होगा, और जब भी ये ब्रेकआउट होगा सो उसके बाद में एक अच्छा खासा मूव निफ्टी में आएगा. ओके, सो ये आप लेवल नोट करके लेना. 18,100 के जो लेवल से जब ये ब्रेक हो गए, देन वी विल हेड टूवर्ड्स 18,600 19,000 जोन. नाउ आई विल शो यू द weekly and monthly chart for Nifty, and you guys can see that it is having a very good pattern. So you guys can see that this is the weekly chart, and on the weekly chart this is the pole and flag. Pole and flag is one of the finest pattern and it's a continuation pattern. तो continuation pattern मतलब क्या, कि वहाँ से move continue होने वाला है. तो यहाँ पे high chances are there that whenever this particular breakout will happen, so after that a good up move can happen, और यहाँ से flag का breakout होके हम लोग एक अच्छे खासे upside में जाएंगे. हम लोग पहले भी इस जोन में रेजिस्टेंस ले चुके हैं. अब रिसेंटली भी मार्केट हैज ट्राइड टू गिव ब्रेकआउट इन दिस पर्टिकुलर जोन, बट इवेंचुअली यू गाइस कैन सी दैट यहीं पे हमें रेजिस्टेंस लग के हम लोग इसके ऊपर नहीं जा पाए और रिट्रेस हुआ, और अभी वापस मार्केट बाउंस करने की कोशिश कर रहा है. शायद ऐसा हो सकता है कि वापस यहाँ पे इस जोन में थोड़ा, जैसे कि हम लोग ने डिस्कस किया डेली चार्ट पे, ये हो के कंसोलिडेशन होके ब्रेकआउट हो और फिर यहाँ से एक अच्छा खासा अपमूव हमें दिख सकता है. सो आई एम, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई एम बुलिश on the markets and Nifty because a good consolidation from past almost 10 months. You guys can see that ये जो हाई है जो अक्टूबर में बनाया था पिछले 2021 के, और अभी अक्टूबर ऑलमोस्ट खत्म होने को आया है, बट मार्केट हैज नॉट सरपास दैट हाई. सो ऑलमोस्ट एक साल से हम लोग एक करेक्टिव प्लस कंसोलिडेटिव मूव पे, जिसके वजह से हम लोग ने एक अच्छा खासा टाइम स्पेंड कर लिया है कंसोलिडेशन में. मार्केट में दो तरह के करेक्शन रहते हैं, एक प्राइस करेक्शन रहता है, सेकंड टाइम करेक्शन रहता है. तो एक अच्छा खासा टाइम करेक्शन हुआ है. सो वेन एवर दिस विल ब्रीच, सो उसके बाद में एक अच्छा खासा अपमूव आएगा, and that I am expecting, to be very honest. So this is the weekly chart of Nifty. If you look at the monthly as well, then monthly भी एक अच्छा खासा पोल एंड फ्लैग की जैसे पैटर्न बन रहा है. आप देख सकते हो कि ये एक अच्छा खासा पोल बन चुका है. उसके बाद में ये यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है. ऑलमोस्ट ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 महीने का कंसोलिडेशन हुआ है. अभी हम लोग ये 13 मंथ, अभी अक्टूबर खत्म होगा, उसके बाद 14th मंथ चालू होगा, एंड वेन एवर वी विल सी दैट ये इसके ऊपर एक ये देगा, तो एक ये वैलिड पोलर फ्लैग मंथली पे ब्रेकआउट होगा. सो गाइज यू कैन अंडरस्टैंड दैट जब भी ब्रेकआउट्स वीकली और मंथली पे होते हैं तो वहां से एक अच्छा खासा मूव आता है. सो टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई एम बुलिश फॉर 2023 की ये निफ्टी 20,000 22,000 इवन 24,000 की तरफ जाएगा. सो आई विल बी लुकिंग फॉर बाइंग अपॉर्चुनिटीज इन दिस पर्टिकुलर बुलेट. सो नाउ लेट्स क्विकली मूव टूवर्ड्स दी निफ्टी बैंक. So I'll just share you the निफ्टी बैंक के भी इंपॉर्टेंट लेवल्स. सो इमीडिएट सपोर्ट निफ्टी बैंक का 40,850 से 40,750 जोन में. तो उसके रीज़न क्या है, I'll just quickly move to आर्ली चार्ट. आर्ली चार्ट में आप निफ्टी बैंक में भी देख सकते हो कि इसने भी एक राइजिंग चैनल जैसे पैटर्न बनाया हुआ है कि इस सपोर्ट जोन से ये ट्राई कर रहा है बाउंस होने की, और यहाँ पे एक ऐसा रेजिस्टेंस हो, इसे बोलते हैं राइजिंग चैनल. तो फॉर्म हुआ है जब भी ये राइजिंग ये फॉर्म होता है, एंड वेन एवर इट ब्रेक्स ऑन द आइदर साइड, सो आफ्टर दैट अ गुड मूव फॉर दैट पर्टिकुलर साइड हैपन्स. सो ये यहाँ पे अभी फिलहाल चल रही है. तो 40,850 दिस पर्टिकुलर जोन 40,850 टू 40,750 एक इमीडिएट सपोर्ट है. अगर ये ब्रीच किया तो दिस कैन गो टूवर्ड्स दी फर्दर डाउन साइड. तो वो केस में कहाँ तक जाएगा, सो इट कैन गो टूवर्ड 40,500 टू 39,900 जोन्स. सो वी कैन सी, आई विल जस्ट मार्क दैट जोन्स. ये 39,900 मतलब ये जो प्रीवियस ये है, ये जोन्स की तरफ ये जा सकता है. अगर इसने ये 40,750 के जोन्स ब्रीच किए निफ्टी बैंक ने यहाँ पे, जस्ट अ सेकेंड, यस. सो यहाँ पे अगर ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स ब्रेक किया तो हम लोग ये जोन्स की तरफ जा सकते हैं.
तो क्योंकि क्विक फॉल आएगा, क्योंकि ये राइजिंग चैनल बना हुआ है, तो जब भी राइजिंग चैनल ब्रेक होता है तो एक क्विक फॉल आता है. सो आप ये चीज़ें नोटिस करना, ये चीज़ें नोट डाउन करना कि जब भी कोई पैटर्न या फिर ये होता है उसका ब्रेकडाउन होता है तो किस तरीके मूव आ सकते हैं, सो दैट जब भी ये पैटर्न्स फ्यूचर में वापस बने सो इट विल हेल्प यू. ओके, सो ये वीडियो का पर्पज नॉट ओनली जस्ट गिव यू द लेवल्स बट टू लेट यू अंडरस्टैंड दैट व्हाट एग्जैक्टली हैपन जब भी कोई पैटर्न का ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन होता है. सो इमीडिएट रेजिस्टेंस की हम लोग बात करेंगे. निफ्टी बैंक का इमीडिएट रेजिस्टेंस है 41,500 एंड इफ दैट इमीडिएट रेजिस्टेंस ब्रेक देन हम लोग जाएंगे टुवर्ड्स 41,900 की जोन्स. सो आई विल जस्ट शेयर यू 41,500 क्या है, ये वाले जोन से देखिए यहाँ पे 41,500. you guys can see that this is the hourly chart and from past almost 2-3 सेशन से 3 बार हम लोग ने इसी से रिजेक्शन लिया है 41,500. सो जब भी ये 41,500 ब्रेक होगा तो हम लोग एक अच्छा खासा अप मूव देखेंगे टुवर्ड्स 41,900, इवन अबव दैट एज वेल. बट 41,900 के यहाँ पे शायद एक पॉज ले सकते हैं क्योंकि वो एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है. तो आई जस्ट शो यू दैट एज वेल कि यहाँ पे मैंने लिखा है इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस 41,900 एंड इसका रीज़न ये है कि ये जोन्स जो है तो यहाँ पे इसने निफ्टी बैंक ने डबल टॉप बनाया हुआ था. सो जब भी ये जब भी ब्रेक हो गए तो उसके बाद में हम लोग एक अच्छा खासा अप मूव देखेंगे निफ्टी बैंक में, तो जो जाएगा टूवर्ड्स 43,000 44,000 की तरफ. यू गाइस कैन सी आई हैव मेंशन हुआ अगर ये जब भी 41,900 के जोन छूटते तो एक 3-4-5 हज़ार का रैली तो मार्केट में निफ्टी बैंक में आएगा. एंड आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि ये डायरेक्टली अभी ब्रेक हो जाए. यहाँ पे भी शायद 41,900 की तरफ जाके कंसोलिडेशन हो और या फिर एक डिप आए और उसके बाद में ये ब्रेक होगा, उसके बाद में हम लोग ये मूव देख सकते हैं. नाउ वी विल क्विकली मूव टुवर्ड चार्ट्स गाइस. आई डोंट वांट टू मेक दिस वीडियो टू बिग. And so charts for this particular week and even for next month as well is first stock is Apollo Hospital. So Apollo Hospitals, you guys can see that it is trying to give breakout. I have posted in my telegram channel as well. So यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक inverted head and shoulder साइड का मतलब तरह का ये ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है. तो जब भी ये लेवल के ऊपर 4630 के ऊपर ब्रेक देगा तो यहाँ से एक अच्छा खासा अप मूव आएगा जो 5200 की तरफ जाएगा. I'll show you that levels as well. So the second stock is the Titan. You guys can see that it is trading near to all time highs और एक पोलर फ्लैग जैसे कुछ पैटर्न बना हुआ है. एंड ये हाइज जो है उसको इसने अभी लास्ट सेशन में ब्रेक किया हुआ है, तो अभी ये बाइंग मोड पे ही है. अगर आप यहाँ पे बाय करते हो तो एक 2800-2900 की तरफ दिस पर्टिकुलर स्टॉक कैन मूव. उसके बाद में सेकंड स्टॉक है third stock is Cummins India. You guys can see that this is again a polar flag pattern. It's a continuation pattern, so very good pattern for traders. And if any dip 1290 पे अगर 1250 की तरफ भी आता है तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी, वहाँ से वापस मूव आएगा 1400-1500 की तरफ और करंट मार्केट प्राइस में भी आप कैश में इसको ले सकते हो. उसके बाद है फोर्थ स्टॉक है रिलायंस. यू गाइस कैन सी इज नाउ ट्रेडिंग एट इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंसेस. अगर ये मंडे के सेशन में अगर गैप अप होता है तो मैं अवॉइड करूँगा, बट अगर अपॉर्चुनिटी देता है इसी जोन्स की तरफ या फिर थोड़ा डिप आता है टुवर्ड्स 2500 की तरफ तो आई लुक फॉर बाइंग अपॉर्चुनिटी. इसके स्टॉप लॉसेस ज़्यादा बड़े नहीं होंगे. आई विल शेयर यू द लेवल्स एज वेल एंड फिर यहाँ से एक अच्छा खासा मूव दे सकता है. अगर आपको पता है कि रिलायंस रेडी है अप मूव के लिए तो यू गाइज कैन अंडरस्टैंड दैट निफ्टी ऑल्सो कैन परफॉर्म वेल. ओके, सो नाउ द नेक्स्ट थिंग इज द बजाज फाइनेंस. ये बजाज फाइनेंस का आर्ली चार्ट है. सो आप देख सकते हो कि इट इज़ बाउंसिंग फ्रॉम दिस जोन मल्टीपल टाइम्स. सो राइट नाउ दिस इज द इमीडिएट रेजिस्टेंस 7100. अगर 7100 क्रॉस करता है तो हमें क्विक मूव टुवर्ड 7500 की तरफ देख सकते हैं. इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स के बाद में ये करेक्ट हुआ है, बट क्वार्टरली रिजल्ट्स फॉर नॉट दैट बैड. थोड़े से डिसअपॉइंटमेंट थे कुछ मार्जिन्स पे, बट वो इतने बुरे नहीं थे. तो मुझे लग रहा है ऑनेस्टली कि ये वापस रिकवर करेगा क्योंकि इसका डेली चार्ट भी आप देखते हो तो वो अच्छा है. वो शायद यहाँ से रिकवर करके जब भी 7500 7600 क्रॉस करेगा देन यू विल सी अ वेरी गुड अप मूव टुवर्ड्स 8500 इन बजाज फाइनेंस. सो आई विल जस्ट क्विकली शो यू दिस स्टॉक्स टू वॉच एंड लेवल्स. अपोलो हॉस्पिटल 4567 करंट मार्केट प्राइस है. बाई लेवल से 4630-40 के ऊपर जाएगा तभी 5200 के लिए ये होगा. स्टॉप लॉस 4200 जोन्स होगा. टाइटन 2736 जोन पे है. ये करंट जोन्स बाइंग लेवल के. टारगेट 2800-2900 हो गया. स्टॉप लॉस 2660 होगा. कमिंस इंडिया 1297 पे. ये बाइंग लेवल से 1360-1400 इवन 1500-1600 के टारगेट्स इसके हो गए. स्टॉप लॉस 1240 होगा. रिलायंस ये जो दिए मैंने ये वीक के हिसाब से या 2-3 वीक के हिसाब से
से दिए हुए, इसलिए टारगेट और स्टॉप लॉस छोटे दिए, बट इवेंचुअली दिस स्टॉक हैज़ हैविंग गुड पोटेंशियल कि ये मीडियम टर्म मतलब 1-1.5 महीने में भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस करे। रिलायंस 2526 पे बाइंग जोन्स में 2615 2675 की तरफ जाएगा, 2480 इसका स्टॉप लॉस होगा। बजाज फाइनेंस 7004 पे है, 7095 7100 के ऊपर हमें बाय करना है, टारगेट 7500 होगा और स्टॉप लॉस इसका 6930 होगा वो केस में। So this is the view for this particular week, guys. I hope you got little bit value out of it. If you got little bit value, then make sure to share this video with your trader friends and जो भी आपके मार्केट में फ्रेंड्स है जो ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग करते हैं, and make sure to subscribe this particular channel